Hi guys, welcome back to another episode of Dil Se. This is Mahin Aga, a holistic practitioner, healer, and coach. Mito? Assalamu alaikum everyone. I'm a seer of who, that is, I'm a believer of who, I'm a lover of who, with a sprinkle of who's energy, Islam, and my paintings. Allahu, Allahu, Allahu. I love that introduction, Badu. My name is Nida Gazmi. I'm a project manager by day, and I do a lot of psychology and personal development and read into quantum mechanics by night. So together, the three of us provide different perspectives on spirituality, and this podcast was born out of a need for a lot of people who sometimes question that maybe when we're spiritual, are we stepping away from our religion or our faith? And that's not the case at all. If anything, I think understanding your religion, whether it's Islam or another religion, provides huge in-depth clarity and perspective on how to step forward in your faith in a very enriching view and enriching experience in life. So today's topic, we had initially meant to discuss how to find your gift in life. And then we thought about it and realized that before we talk about how to find your gift, we must first understand why we can't seem to find it. Okay. And I think that Manin had like a phenomenal perspective on it. So I'm going to let you go first. I'm going first? Yes. Okay. All right. So why don't we find our purpose? एक तो we're trying too hard. ठीक है? ये purpose जो word है ना, हमारी जिंदगी अजाब हुई हुई है इसकी वजह से थोड़ी सी, कि हमने फला चीज कर दी, हमने इतना बड़ा बनना है, हमने ये करना है, यूं करना है. But a bigger purpose is something else. But there are small purposes, ठीक है ना? Small goals that you have to achieve throughout your life. And why we can't find it is because we have to go through the journey of finding it, of seeking it. आप पहले अपने आप को जो है, make an intention कि I want to find my purpose. I need to find out why I'm sent here on this earth, on this planet. ठीक है? मुझे करना क्या है यहाँ पे? Okay? And throughout the journey of your life, if you visualize yourself as a life story, आपको पता चलता जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग किस चीज में हो रही है और कहाँ आप जा रहे हैं. ठीक है ना? इसका जो टेक्निक है वो नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि हाउ टू फाइंड इट. बट अ पर्पस इज एज सिंपल एज गिविंग समबडी चैरिटी. ठीक है? ये आपका पर्पस था कि आपने ये आज उसको पैसे देने थे गरीब को. ठीक है? छोटा सा पर्पस था, आपने पूरा कर लिया. आपको पता ही नहीं चला कि आपने पूरा कर लिया, आपको सवाब मिला उस पे. जो भी है, everybody, God is keeping count of what's going on, or we're not talking about jannat or akhirat, dozak, but small purposes. ठीक है? बच्चों को खाना देना आज, small purpose, you achieved it. But क्योंकि सोसाइटी में इतना बिग डील बनाया जाता है ऑफ बिगर पर्पसेस कि हम ये छोटी बातें भूल जाते हैं. ये छोटे जो हम सवाब कमाते हैं, those are also purposes जो हम करते हैं every day, and people want to know about the bigger purpose. ठीक है? अच्छा, चलिए हम बड़े पर्पस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी. Why we can't find it? Why we can't find it is because we are not asking the right questions. We are not looking. ठीक है? हम देख नहीं रहे हैं कि हमारे टैलेंट्स कहाँ हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में बुरे हैं. We're not digging in deep in ourselves. ठीक है? आप अपनी स्टडी करेंगे तो आपको अपना पर्पस पता चलेगा. अगर आप किसी और को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका पर्पस क्या है, और अपना आप क्वेश्चन कर देंगे, यार मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है. आपका पर्पस जो है वो किसी का साथ देना है, किसी दोस्त की हमदर्दी करनी है, उसको सपोर्ट देना है, या किसी बीमार की तीमारदारी करनी है. आपका वो पर्पस हो सकता है. बट we don't see ourselves as being that kind of in that kind of a role, because we think
a purpose is to become at a CEO executive or become a multi-millionaire giving charities to worldwide organizations like Bill Gates, or that is media, that is propaganda. ठीक है ना, कह सकते हैं. But everybody जो भी इस दुनिया में आया है, you are serving a purpose. ठीक है, अपने आप के अंदर झांके, सुकून लें, 3 सांसें लें जोर जोर से and say शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं कुछ कर रही हूँ इस दुनिया में, and I am living the best life ever, or please use me for doing more betterment in this world, and doing as much good as possible, because हम यहाँ अच्छा काम करने के लिए आए हैं और गिफ्ट शेयर करने के लिए आए हैं, टैलेंट शेयर करने के लिए आए हैं, और if you dig deep you will find it, but you aren't able to find it because you're not sitting and exploring yourself. Beautiful. I completely agree. I think तुमने शुरू में जो बात की थी माही के हमें सिखाया जा रहा है कि हम दूसरों की तरफ देखें, और फिर जब हम देखते हैं हमें उनका मकसद समझ में आ जाता है, और फिर हम खुद से कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसने तो इतने पैसे कमाए और वो जो है साहब उन्होंने अपनी एक SpaceX मिशन कंपनी क्रिएट कर ली है, और you're trying, so that confusion is what I wanted to talk about, which is कि जब हम बचपन से पैदा होते हैं तो one of the things I heard Sadhguru say the most is, if you're gonna have kids, do not put your impression of the world on them. Do not put your rules and your thoughts on how they should do things. और उसकी बेटी को he's like, मैंने कभी भी किसी को अपनी बेटी पे अपने opinions नहीं डालने दिए, no matter who it is, that how she should be and what she should do and whatever it is. So we grow up, especially Desi culture mein, and especially Desi culture that's been immigrated from Pakistan to the US. Oh my God, hum log to time stamp mein, we just stuck in whatever time they left it. That's where we're stuck. So we grow up with all the ideas that our parents have taught us. Now we're struggling and battling how to be a good child for them, and also walk through our life, okay? Then social media on top, news on top of telling you what you should and shouldn't pay attention to, what is and isn't important. So, and on top, zero social educational support of things that will allow you to have clarity, such as meditation, or if you're in an Islamic school, the namaz, even though Sunday schools I don't think provide any true connection. So now suddenly you have a complete cloud of distraction around you on a 150% of the time. So how are you supposed to see through anything? Even as what Mahi you said was that this is supposed to be your journey to find your purpose. You need to have a desire, but even when you have the desire, sometimes it takes us my God, a decade to figure out I don't know what the thing is, but mera rasta udhar hai. So then what I was saying is now with this so much cloudiness around you, ultimately you cannot make that clear direct connection to whatever your highest power is, whether that's you with yourself, you with God and Allah, or you with your own other higher self. And that connection is only born through the power of love. And so you're trying to love yourself, you're trying to make that connection of love with your higher power, and then from there only you can fulfill any purpose in your life, because your purpose will never be for you. It will never be for you to make $1 billion so you can serve your own damn self. It will be for, even if you do make $1 billion, it would be, how can you serve other people? I barely know any billionaires, except probably in the Arab countries, that only serve themselves. America ka koi billionaire aisa nahi hai that is purely self-serving. It is stupid economically at the very least, because they have to have tax benefits, right? So they have to do for other people. But that's my perspective, is that it's taken us, all of three of us, quite some time to learn, that's the way. And
I wouldn't even say कि मेरा कोई purpose हासिल हुआ है या accomplish हुआ है. I would just say I've gotten to the point where I understand कि ये करना है मुझे. अब ये करते करते, if I can influence people positively, if I can inspire people positively at this level or this level, then मेरा काम complete हो गया. आगे अल्लाह जाने. Beautiful. निदा, बहुत खूबसूरत तरीके से दोनों ने बहुत खूबसूरत से एक्सप्रेस किया है, and I'm very wow, like सुन के बहुत मजा आया है, you know, so I'm sure ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा जो भी सुनेगा. So, मैं दोनों को लेके elaborate करूंगी because दोनों ने मेरी दिल की बातें की हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से, and मेरा बस जिस तरह एक्सप्लेन करने का तरीका है वो मैं अपने तरीके से बता दूंगी. तो दुनिया में अल्लाह ने हम सबको गिफ्ट्स के साथ भेजे हैं, ठीक है, वो हमारे पर्पस है. हमने आना है, हमने इस दुनिया में आना है, हमने उस गिफ्ट्स को फिगर आउट करना है कि हमारे गिफ्ट्स क्या हैं, ठीक है. बहुत दफा ये होता है कि हम किसी का गिफ्ट देख के समझते हैं कि ये गिफ्ट हमारे भी हैं, ठीक है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे गिफ्ट्स के आगे एक समझ लो, एक एग्जांपल दूंगी, सूरज है, ठीक है, वो सूरज हमारा जो सन है वो हमारा गिफ्ट है, ठीक है, मगर उसके सामने क्योंकि हम इग्नोरेंट हैं, हमें कुछ पता नहीं है, उसके सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड है, ठीक है. तो क्लाउड बहुत जब बड़ा है तो वो जो गिफ्ट है, जो सन है, उसकी किरणें हमारी तरफ आ ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं है कि वो हमारे गिफ्ट्स हैं, बिकॉज हमें वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है. और क्या हो रहा है कि हम किसी और के सूरज को देख के कहते हैं कि यार ये दिस इज इट, दिस इज हमारा गिफ्ट, दिस इज हमारा पर्पस भी. तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वो ज्यादा क्लियर है और हमें कहते हैं यार ये कर रहा है गिफ्ट, ये कर रहा है, तो दिस इज इट, हमारा भी यही है, क्योंकि हमारा तो हमारे पर्दे आए हुए, हमारा तो क्लाउड है, राइट. हमें गिफ्ट ही नहीं पता. तो हम क्योंकि जो इंसान है, इंसान की नेचर है, जो चीज नजर आ रही है उसको ज्यादा यू नो विल टेक इट. सो हम उस सूरज को देखते हैं किसी और के, लाइक लेट्स से दिस इज आवर पर्पस टू, दिस इज आवर गिफ्ट टू. तो वो हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल माही, मैंने लास्ट टाइम जो दी थी, माही है ब्रेसलेट, यू आर नेकलेस, ठीक है, तुम नेकलेस के लिए पर्पस बनी हो, गोल्ड की अगर तुम नेकलेस हो, माही जो है वो ब्रेसलेट है, मैं रिंग हूँ. अब मैं माही के अंदर उसको पर्पस का वो गिफ्ट में बनना चाह रही हूँ, मैं कभी भी नहीं वो बन सकूंगी. See, that's the beauty and I think that's the magic of it कि जिस तरह वो बनी है, जिस पर्पस के लिए वो बनी है, मैं कभी भी उसकी पर्पस पे आ ही नहीं सकती. जिस पर्पस के लिए तुम बनी हो निदा, मैं उसके लिए कभी मैं वो बन ही नहीं सकती, बिकॉज यू आर नेकलेस. तुम्हारी जो गिफ्ट है वो हार बनना है, ठीक है, मेरा रिंग है तो मैं रिंग ही बनूंगी, मैं लोगों की उंगलियों में ही आऊंगी. सो दिस इज माई, सो मैं तुम्हारा देख के ऐसा वाओ, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा पर्पस क्या है, राइट. सो आई एम गोइंग टू बी लाइक वाओ, यू नो माही, आई लव दैट, तो मैंने भी ब्रेसलेट बनना है. तो अब क्या होगा, उसकी तो नेचर में है वो चीज, बिल्ड अल्लाह ने उसकी नेचर में डाल के रखी हुई है कि माही ने ब्रेसलेट बन के लोगों को पहनाना है उसका, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, दिन रात वो रिंग जो है मैं उस पर मेहनत कर रही हूँ कि मैं भी किसी तरह मैं वो ब्रेसलेट बन जाऊं, किसी तरह मैं नेकलेस बन जाऊं, ठीक है. सो वो क्या होता है कि जो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ तुम्हारा, सो सिंगिंग, ठीक है, सिंगिंग इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. एंड मैंने जब सुना आई वाज लाइक ओह आई लव, ये नहीं कि आई डोंट लव यू नो सॉन्ग्स, आई लव सॉन्ग्स, मगर जब मैंने तुम्हारा सुना आई वाज लाइक निता, दिस इज इट यार, ये दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल जो लोगों में नहीं है, राइट. तुम्हारा सुकून देती हो तुम, तो दिस इज योर नेचुरली बिल्ट इन यू, जो लोग नहीं कर पाते. वो गाएंगे जरूर मगर वो उस तरह नहीं सुकून दे सकेंगे जिस तरह तुम दोगी, राइट. तो अब मैं क्या करना शुरू कर दूं, अब मुझे नजर आ रहा है कि निदा जो है वो गाना गा रही है, निदा जो है वो करने की कोशिश कर रही है, सारा को इतना खूबसूरत गा सकती है. अब मैं कहूँ जी हाँ जी निदा, मैंने भी तुम्हारे पीछे पीछे मैंने कॉपी करनी है तुम्हें, और मैंने क्या बनना है, सिंगर बन जाना है.
अब मुझे दिन रात में मेहनत करूंगी तो जाके शायद वो चीज में बन जाऊं, और वो भी नहीं बनूंगी क्योंकि क्या होगा, वो मेरा पर्पस नहीं है। व्हाई डू यू थिंक कि हम एक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, कितनी दुनिया है एक्टर्स से इंस्पायर होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार हमने भी एक्टर बन जाना है। कितने लोग हैं कि बन भी जाते हैं, राइट माही, कितने लोग हैं बन जाते हैं, यार कितना मैं भी एक्टर बनूंगा, मगर उसमें खुश नहीं होते क्योंकि वो चीज उसी के लिए बनी ही नहीं है। क्यों कितने बन के भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतने सुसाइड हो जाते हैं यार। सुसाइड केस मैंने देखे हैं, जो एक्टर्स इतने बड़े बड़े हैं वो सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज व्हाई दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज उनका वो पर्पस ही नहीं है। सो सेम थिंग। अब मगर ये भी नहीं है, इसको भी मैं एक चीज में लेके आ जाऊं कि लोग समझे कि हम उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी किरण को देख रहे हैं, तो शायद ये हमने देखना छोड़ देना लोगों को, राइट, क्योंकि हम इंस्पायर ही नहीं हो सकते। नहीं, अब वो जो किरण नजर आ रही है किसी की, ठीक है, अगर आपका भी वही पर्पस है तो आप उसके पर्पस को, आप उसके गिफ्ट को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, एंड थ्रू दैट इंस्पिरेशन लेके यू कैन बिकम, यू कैन फाइंड योर गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, माही की और मुझे ले लो, ठीक है, सो इसका पर्पस और मेरा पर्पस सेम है, ठीक है। अब क्या है वो पर्पस, जो मेन पर्पस है, जो मेन गिफ्ट है, वो ये है कि लोगों को हील करना। एम आई करेक्ट? ओके, तो इसने क्या देखा, इसने मेरे अंदर एक देखा कि एक किरण है इसके अंदर, बिट्टू के अंदर, कि देयर इज समथिंग स्पेशल, राइट। उसने आई है मेरे पास, उसने कहा कि यार देयर इज समथिंग आई नीड टू फिगर आउट व्हाट्स इन यू, राइट। तो मैंने क्या किया, उसको जो भी मेरे अंदर था, जो भी मैं दे सकती थी, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे अंदर जो थी, मैंने इसको दे दी, ट्रांसफर कर दी, ठीक है। सो आई बिकेम द गाइड। हाउएवर अब डिफरेंस ये है कि ये मेरा कॉपी नहीं कर रही, ठीक है। गलत यहाँ पे हो जाता है कि ये मेरी कॉपी करना शुरू कर देती है। कॉपी नहीं करी, इसने क्या किया, एक गाइड पकड़ी है इसने, वो एक किरण मेरी पकड़ी, एक सूरज की, उसने उसको ट्रांसफर किया अपने अंदर। देन शी ओपनड हर ओन डोर्स, ठीक है। देन शी ओपन हर ओन डोर्स टू फाइंड हर पर्पस, टू सी कि इसका गिफ्ट क्या है। इसने अपने, अब नाउ शी इज गोइंग हर ओन पैथ, अपने पास जा रही है, मैं अपने पास जा रही हूँ। मेरा जो गिफ्ट है वो मैंने अपने तरीके से, मैंने रिंगी बनना है तो मैं रिंगी तरीके से बनाऊंगी, मगर वो क्या है, वो पर्पसली, वो जो पर्पस है हमारा वो खत्म नहीं हुआ, राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि हमें लोगों को यही नहीं समझ आती कि वी ऑल हैव गिफ्ट्स, एंड दैट्स हमारे अपने अपने अंदर है, और हमारी यही ब्यूटी है और यही एक मैजिक है। ना मैं इसको ले सकती हूँ, ना इसके गिफ्ट्स ले सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे गिफ्ट्स ले सकती हूँ, ना तुम मेरे गिफ्ट्स ले सकती हो। अच्छा, मजे की एक बात है, I'll add to this, इसके once you figure out your alignment and your gift, you will also see that there's a lot of validation that comes along with it, ठीक है ना। वो आपको कंफर्म करती है ताकि आप जो है ना वो कॉन्फिडेंट हो जाए अपने एबिलिटी में। That is also something that is played by the universe or nature, you know, to help you expand into your purpose. I agree, Mahi. Validation, और क्या कहते हैं, जब आप उस सही चीज को ढूंढ रहे होते हैं कि where is my उस्ताद और where is my teacher for it, मैंने नोटिस किया वो किताब, वो बंदा, वो चीज, वो वीडियो यूं सामने आती है आपके, आपको ऑलमोस्ट मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है फॉर द राइट थिंग। जैसे तुमने मेरी सिंगिंग का बोला, राइट, आई विल से कि सिंगिंग के बारे में मुझे इतनी वैलिडेशन मिली है अपनी जिंदगी में, और मैं उस चीज को छुपा के, दबा के या व्हाटएवर, मतलब मैं उसको साइड पे बिल्कुल रखती थी कि लाइक वो अंडरस्टूड एक बात है एंड इट्स नथिंग स्पेशल। तो जब स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब उन लोगों को पता चला, जब मैं वर्जीनिया में रहती थी, जब उन्होंने मुझे सुना, तो वो, आई कैन नॉट टेल यू लाइक द practically celebrity level of fanfare जिसके साथ वो आवाज रिसीव हुई थी, वो टैलेंट it was not developed। और वो किसके सामने ये डेब्यू हुई थी, like ऐसे ही बैठे बैठे, it was in front of like 3 or 4 like literally
famous restaurant musicians from Pakistan, like extremely famous musicians. And even then I didn't take it seriously. लेकिन हमेशा मेरे पास वो connections available थी. In fact, I was formerly married to a musician who taught two of our most incredible musicians in Pakistan, Noori, Ali Hamza and Ali Noor, who are incredible musicians, ठीक है. तो और मुझे समझ में नहीं आता था why am I married, like, because being married to a musician, by the way, like a proper musician, it's not fun. It's not fun at all. So I was used to wondering कि मैं क्यों बार-बार इस म्यूजिक के उसमें फंस रही हूँ उसमें ना. And I still always had access to great teachers, this that. और अब इतने सालों के बाद जब मैं finally दिल लगा के ढूंढ रही थी कि नहीं अब करना है मुझे हर हाल में इसको सही तरीके से, I remember my music teacher telling me कि हम 4 साल पहले जो मिले थे वो आज के लिए सेटअप था. When हम तो हमेशा से थे, when you were finally ready to admit and acknowledge and build this thing, we were waiting. और मुझे याद है जिस दिन मैंने उनको मैसेज किया था, it was not even a few weeks ago, उनका जिस तरीके से जवाब आया था, it was like finally उसकी कॉल आ गई. मतलब वो इंतजार में थे कि इसकी कॉल आएगी. And your teacher, whoever's watching this, your teacher, your book, whomever your teacher is, वो भी इसी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि जब ये आएगा और आएगी हम रेडी हैं. Well said. Well said. Thank you. What about you, Mahi? वाह वाह वाह, मैं तालियां बजा रही थी, मेरा म्यूट था. Beautiful. फिर Mahi, what do you think? बिल्कुल यही बात है. और क्या मतलब हमारा क्या होता है, all three of us, जब हम दुआ भी करते हैं कि हम यही कहते हैं कि या अल्लाह जो हमारे पास लिखा हुआ है बंदा जो हमसे हीलिंग लेगा उसको हमारे सामने लेके आता कि we can deliver. ठीक है ना. This is a temporary world after all. We have the end result is us going, leveling and going meeting our God. ठीक है. ये तो बस टाइम पास है ना. एक जो चीज दादा ने बोली थी, something about you see your path and it's going somewhere. ठीक है ना. You have that feeling inside of you. उससे मुझे एक चीज hit हुई थी कि I don't know if we can talk about this or not, but is that our Siratul Mustaqim, Bitu? So ये फिर से क्योंकि ये क्वेश्चन जो है निदा का था, तो क्या था क्वेश्चन? किस how नहीं क्वेश्चन है कि पर्पस जब अलाइनमेंट होती है तो हमें फीलिंग आती है कि ये हमारे पाथ है, हम इसी पे चल रहे हैं, इट फील्स गुड. ठीक है ना. तो is that like validation जो है जो मिल रही है? नहीं, मैं पता नहीं क्यों मेरे एकदम से सिरातुल मुस्तकीम came in my mind, the सीधा रास्ता. I know that is more, reaching. हाँ वो but मैंने भी तो यही बात की थी. So सीधा रास्ता जो है वो वहीं पे आ जाता है नियत पर, आपकी नियत पर. जहाँ जहाँ आपकी नियत जो है वो सही रहेगी, आपको वहाँ गाइडेंस मिलती रहेगी कि ओके ये वो एक अनदर टॉपिक है जो आई थिंक आई वुड रेकमेंड कि ये जो बहुत खूबसूरत बात की है इसके ऊपर ये है कार्मा का. ठीक है. ये हमारी जो पता चलता रहता है कि अच्छा हम सीधे रास्ते में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि हम गुमराह हो रहे हैं कि नहीं गुमराह हो रहे, एंड हाउ टू कीप गोइंग स्ट्रेट. तो वो बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है. आई थिंक वील बड़ा अच्छा दिया है. आई थिंक this overlaps with the purpose of life. Shouldn't it overlap with the right path, because we are operating in the state of love when we are going in the straight path, along with our purpose. yes, अगर आपका पाथ आपको पता है कि ये see, and that comes जब आपको you are enlightened, जब आपको truth पता चल जाएगा, ये तब आता है. ये phase, and that is for the next episode. जब आपको ये हो जाएगा ना, जब when you know your truth, when you know your gift, when you know your purpose, when you are enlightened, that's the time when these guides will come and you will know that you're on your right path or not. You are able to go to that path straight और कि गलत इधर उधर जा रहे हैं. Right away Allah Taala ने आपकी रस्सी पकड़ी होती है and that this is it.
you know, he's telling you, come here, come here. कहीं आप जा रहे होते हो, right here, you know. So that is the way, you're right, कि हमें पता चलता है कि this is the path, हम सिरात मुस्तकीम में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. क्योंकि आई थिंक ये ओवरलैप होना चाहिए, राइट? आई मीन और जब तक नहीं होंगे, हम देखो फरिश्ता तो है नहीं है भाई, सो जब तक नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू नो हमारा अंदर जो हमारे गिफ्ट्स हैं, हमारा पर्पस क्या है. इट्स सैड, like Nida said, through media, through cultures, through communities, you know, हमें इतना ज़्यादा brain wash किया जा रहा है to focus on one thing, money, 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 right? To have materialistic things in our lives more important than our true purpose. You know, some people, it's sad that people हमसे सिर्फ बात ही तब करते हैं कि वो देखते हैं कि okay, कि भाई तुम्हारा कितना बड़ा घर है, you know, अच्छा तुम्हारी क्या job है, you know. When people ask you कि what do you do, you know, so people tell you कि हम ये करते हैं, तो वो आपको फिर decide करते हैं कि okay, हमें से बात करनी कि नहीं करनी, right? Which is sad because this is not, these are just materialistic things. We can have, we cannot have, we are not here for these things, you know. It's a good thing, you have it, you have it. नहीं है, लोग give up कर देते हैं. There's so many people who are rich people and they दान करके अपने, you know, they go and sit somewhere else alone, you know, and they say कि भाई तुम ले लो पैसे. My dad, my own dad, he did that. It's like कि मैं पाकिस्तान में, you know, सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, बस मैंने आके अलग अपनी फैमिली को बसा देना है. I'm gonna start my life from here. You know, he didn't care. He never cared for money. So I think it's so important कि हमें पर्पस पता चले. And I'm excited कि हम नेक्स्ट एपिसोड में जो है, you know, हमें पता चलेगा कि किस तरह है. वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से पता चलेगा, of course, because you guys are so amazing. जिस तरह एक्सप्रेस किया, you know, yourself बैठे and I'm like wow. तुम्हारी बात है, तुमने ये टॉपिक निकाला है कि पहले दूसरे टॉपिक से पहले we should be talking about this, right? And हम वही बात कर रहे थे कि यार, you know, हमें नहीं पता, हम बैठे हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करते, हम सोचते नहीं है उस वक्त, हमें प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, you know. That's why I think it's so दिल से, क्योंकि हम दिल से बात कर रहे हैं. इसमें कोई हम पहले से प्रिपेयर नहीं होके बैठ रहे, या पहले से हमने सोच के नहीं बैठ रहे कि अच्छा ये क्या करना है बात. Whatever it is, दिल से, you know, दिल से जो बात करती है. दादी का भी यही कॉल है कि जो दिल से बात निकलती है वही लोगों तक पहुंचती है, दिल तक, you know. So I think that's the beauty. मौला अली की बात पे I do want to mention two other things. लेकिन मौला अली की बात पे मैंने जो नोटिस किया है कि for example, so my teacher is also constantly, my singing teacher is also talking to me about कि भाई, you know, why do you, तुम्हें टेढ़ा भिंगा जाने की क्या जरूरत है, तुम सीधे रास्ते पे चलो, जो तुम्हारा सीधा रास्ता है. और वो ऐसे मजे की बातें बता रहे होते हैं. कभी मुझसे कहा नहीं that you should do this, और कभी एक लफ्ज नहीं कहा, बस ऐसी प्यारी बातें बताते रहेंगे इमाम अली की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की. मैंने खुद से I was like, oh, I feel like reading Nahjul Balagha. I feel like understanding it from me, who I am now, than when I was a kid, because it never made sense. And that was such a gift from like मेरी टीचर से, मेरे टीचर से मुझसे मेरी तरफ, it's such a gift कि वो हर तरीके से मेरा जहन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू, अलग अलग म्यूजिक जो मैंने कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा कि oh my god मैं 60s की म्यूजिक निकाल के, you know, सुनने लगूं. And now I am like in love with the words and the music and the talent. उस तरफ से भी दिमाग खुलता है, और guiding you towards things that will work for you, that he knows. अब obviously वो किसी random person को तो नहीं बोलेगा ना इमाम अली की कहानी बताना. He knows that this is my interest. The other thing I wanted to go back to, बिट्टू जो तुम कह रही थी ना material things, is that एक बड़े मजे की चीज होती है जो तुम लोगों को भी I think तुम लोग relate कर सकते हो उसके. By the time आपको बातें समझ में आती है ना, जो चीज़ें आपको चाहिए होती थी, you don't give a crap about those things, even when you can get those things. So for example, मुझे बड़ा शौक था कि एक दिन when I can afford it, you know, I've always driven like normal cars and I've never had a new car, never. एक दिन मैं Audi लूँगी, and whenever I can afford it. और आज मैं literally कैश में खरीद सकती हूँ गाड़ी अगर मैं चाहूँ तो, और मेरा इतना सा भी दिल नहीं करता. I love my 11-year-old Civic. मेरे एक बड़ा कार एफिशिएंटो एक फ्रेंड है उमर, उसने मेरी गाड़ी जबरदस्त, उसने like he brought it to speed,
he installed all these things, and I'm like, I'm good. मुझे कोई फिक्र ही नहीं है ना insurance की, ना कहाँ मैं park करती हूँ, and it's just like a non-thing. And I used to lament to my certain friends कि भाई मैं अपनी family में देखती हूँ, and I try very hard to persuade them in subtle ways towards different things that are for their benefit. And I've come to realize कि अगर मैं millionaire होती इस वक्त, you know, बड़े मजे से लोग बात सुन लेते, no matter what I said. But for some reason, majority of people, it's the money that counts, that gives validation to a person rather than their experience and their wisdom. I'm not saying I'm the wisest person in the room. I certainly have had, like, I almost feel like जिसने सबसे ज़्यादा गलतियां की ना उससे जाके पूछो. That's true. I mean, we all have made a lot of like really big mistakes. Ask us in those areas what not to do. Not the people who have $1 million or $1 million का entrepreneur तुम्हें क्या बताएगा how to handle a divorce as a South Asian woman with kids or whatever. Right. And that's beautiful because yeah, you're right. इसी को लेके मैं यही बात करूंगी कि that's the reason कि आप अपने purpose को find करना बहुत जरूरी है. To know your truth, I think it's the most important thing. अल्लाह ने भी कहा मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं चाहता था कि मैं पहचाना जाऊं. So, and that is truth, that is love. You know? हमें टेस्ट आएंगे जिंदगी में, ये जो सारे टेस्ट आ रहे हैं, हमें ये जो स्ट्रगल्स आती हैं, हमारा सारा कुछ होता है, वो इसीलिए आते हैं ताकि हम इन्हीं को पास करते 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 सिरातुल मुस्तकीम जैसे वो बात कर रही थी कि हम इसी रास्ते में हम चलते रहें और हम रीच कर जाएं. और जब हम रीच करेंगे, हमें अपना पर्पस पता चल गया एक दफा, तो फिर हमें दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है तो हमें खुशी होगी. बिकॉज मुझे पता है कि तुम्हारा पर्पस, तुम गाना गाओगे, मुझे इतनी इंतहा खुशी होगी बिकॉज मुझे पता है ये तुम्हारा ही पर्पस है, तुम अचीव कर रही हो. मुझे इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? इसीलिए तो लोग इतनी जेलसी हो रही होती है आजकल के जमाने में. इतनी हसद है, इतनी जेलसी है, इतनी ज्यादा लोग इनसिक्योर है अपने आप को लेके क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया हुआ. मगर वो किसी को जब देखते हैं उसकी डिस्कवरी, तो वो उनको हसद हो जाती है. and they become like यार हमें ये क्यों चीज नहीं है, you know. So I think that is why we all should know कि हम सबको गिफ्ट मिले हैं. और it's not easy, and I know it's not easy. मुझे पता बहुत मुश्किल है, इसलिए it's very easy उन लोगों के लिए to come to that level जहाँ पे हम all चाहते हैं कि हम वहाँ पे हों और वो जब उनके साथी होंगे जिन्होंने स्ट्रगल की होंगी सबसे ज्यादा. Like you said, you know, जितनी स्ट्रगल्स आती हैं उतनी ज्यादा अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं उनके साथ सबसे ज्यादा क्लोज हूँ जिनके साथ जो they're wounded, you know, जो उनके साथ स्ट्रगल्स होती हैं. इसकी बात पे अगर सोचा जाए, राइट, अगर मेरा टैलेंट सिंगिंग है और तुम्हारा माही, तो you both are talented at energy work and in painting, for example. अच्छा, अब मैं पेंटिंग किसी ना किसी तरह से कर भी लूं, राइट, I will tell you 100% guarantee मैं I will enjoy 0% of the process of painting क्योंकि you know like I'm not enjoying it. मुझसे सिंगिंग करवा लो, क्या सकील डेप्थ में और डिटेल में मेरे टीचर चाहते हैं अक्सर, और ऐसी नोके निकाल रहे होते हैं, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट एट द एंड ही सेज तुम इसलिए इतना प्रोग्रेस कर रही हो इतनी जल्दी क्योंकि तुम में इस चीज की जुस्तजू है. यू हैव अ रियल पैशन एंड डिजायर. सेम थिंग फॉर यू. तुमने एक पेंटिंग, बल्कि तुमने इसी पेंटिंग से शुरू किया था ना जो तुम्हारे पीछे है. मेरी सबसे पहली जो पेंटिंग थी वो थी करबला वाली. अच्छा. This was one of your initials, I think. Then उसके बाद ये थी मेरा biggest vision. और अब तुम्हारी इस पेंटिंग से अब कोई आज या कल जो तुम पेंटिंग कर रही हो इसी वीक में, उसमें और इसमें फर्क देख ले. Oh my God, like seriously. Yeah, you had like ज़मीन आसमान का फर्क, but you had the passion and dedication कि मैं करती चली जाऊंगी.
और यही एक की वर्ड है पैशन. आप पैशन में आपको पता चलता है कि ये आपका अगर पैशन है ना, तो आप 10 आवर्स भी लगाओगे ना उसके अंदर, आपको लगेगा कि आपने सिर्फ 1 मिनट लगाया है. Exactly. That's your gift, that's your nature. अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला हुआ ये चीज. So if you're happy in doing something, go for it. I think that's the best thing. अच्छा, और माही की जो क्रिएटिविटी निकलती है, जो मैं नोटिस कर रही हूँ काफी टाइम से, जो मैं नोटिस कर रही हूँ, like so Mahi used to do photography, now she's gotten into energy, lots of modalities of energy work and the painting, but she has this like command over like how do you say, like not just arts and crafts but like जैसे वो crystals थे, ठीक है, अब तुमने वो ट्यूब्स के गिफ्ट्स बनाए हुए थे, ठीक है, वो मेरे पास आज भी रखे हुए हैं और मैं उनको बाहर से धो के धूप दिला देती हूँ कि लाइक खराब, इनकी सेटिंग ना खराब हो, बट आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ दैट आइडिया. फिर तुमने अपनी बर्थडे पे एक मर्तबा जिस तरीके से पूरा डब्बा बनाया, क्रिएट किया, आई विल नेवर फॉरगेट दैट. इनफैक्ट आई थिंक आई स्टिल हैव द डब्बा. मैंने आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने उसको डिसमेंटल किया, सोप्स, उसमें जो भी चीजें थी सारे चॉकलेट करके वो तो मैं खा गई थी. बट these things are, whether you realize it or not, they are extremely memorable. Like in the sense कि जैसे मेरी cousin है, she's incredible at dressing but extremely simple. I can almost recall every single thing she's worn at certain events. And she was on the phone with me the other day talking about, again ये passion की बात हो रही है, right? वो मुझसे किसी और चीज की बात कर रही है कि मुझे दीदी I want to look into this thing and I want to explore this thing, entrepreneurship, and I'm telling her about this talent of hers and I'm recalling every single thing she wore and she was like, oh my god, आपको सारी चीजें याद है. I'm like, yes, because this is your gift. ये तुम्हारी चीज इतनी मतलब innate है कि ये memorable है, मतलब मुझे याद रहती है ये चीज, हर टैलेंट. इसी तरह से तुम लोगों की भी पेंटिंग्स, तुम लोगों की जो crafts, मतलब even माही के energy जो sessions होते हैं, they are quite memorable. If you haven't had one done by Mahi, then one really should. You're missing, huh? you're missing out on one. You are, because इतनी हद तक के मेरे, what I was telling you guys कि last week जो मुझे idea आया था कि फलाना course करना चाहिए माही को, which is actually, it's also another modality of healing. It's called theta healing. The thought came in my mind that Mahi should do it so that we both can benefit because she's the best at it. And thankfully, she had read my mind, and the next day she told us, "Okay, oh, by the way, I'm signed up for this course." So मेरा काम पूरा हो गया. So it turns out that you also have it, right, in your Mind Valley? So there's two different courses. एक Silva method का जो Mind Valley में है, और फिर theta healing is something different. But ultimately these things all coalesce and they come together in the same place. And that's the thing about this that कि हम एक दूसरे को, अल्लाह ताला ने हमें भेजा इसीलिए कि हम एक दूसरे को मदद करते रहें, But देखो, मैं उस दिन सोच रही थी कि मैं कर क्यों रही हूँ, what is the motivation behind it, ठीक है ना, for me, because it has to have a little motivation. हाँ, सही बात है. कि आपका मकसद क्या है? मेरी motivation is Caden, my son, healing him. I am looking at every and any opportunity कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं उसको शिफा दे सकूं, ठीक है ना. एंड यहाँ पे हैं ऐसे स्किल्स हैं हीलिंग के, तो वो व्हाई नॉट. एंड देन आई एम कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग ऑल ऑफ देम टू सी व्हिच वन इज द बेस्ट वन. एंड इफ आई कैन गाइड समबडी एल्स लेटर ऑन इन लाइफ कि भाई अच्छा ये मत करो, ये कर लो, इससे जल्दी तुम्हें हो जाएगा, अच्छा ये नहीं करो, ये कर लो, अच्छा इसके इतने सेशन कर लो. दैट इज समवेयर आई थिंक आई वांट टू बी एट. दैट्स व्हाई मैं अपने इंट्रोडक्शन में बोलती हूँ कोच. वो क्यों मैं बोल रही हूँ अब, क्योंकि आई थिंक आई एम एट अ प्लेस नाउ कि मैं गाइड कर सकती हूँ कि अच्छा ये नहीं करो, ये कर लो, या probably 30-40 certifications की हैं अब तक, जो मतलब मैंने अंदाजा लगाया है. I have thought. Go. और हर modality में, yeah.
So and और not just that, लेकिन तुम्हारा practice और experience भी हो चुका है in producing results for people through your energy work. And तुम्हारी एक आदत है कि तुम्हारी आँखें नजरें हमेशा ढूंढ रही होती हैं कि like is there something else available to us? And on that point, हम you know we were talking some time ago, अभी recent 1-2 साल पहले की बात है कि you know रेकी एक ज़माने में 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार की ट्रेनिंग हुआ करती थी और लंबी ट्रेनिंग हुआ करती थी, और आज आप fully रेकी certified हो सकते हैं for just a couple of bucks, you know. and the reason that we came up is कि भाई रेकी एक initial modality हमको deliver की गई थी, ठीक है. उसके बाद there are many far different, far you know more impactful and different use के modalities भी अब निकल गई हैं. तो अब ये चीज़ें हमको available की दी जा रही हैं ताकि हम you know we should use them, make avail of those tools, चाहे आप सीखने के लिए करें माही की तरह से, या you trying to use them or you use the services of someone like Mahi or Bittu for such things. Okay, the other day I got burnt. I did Reiki on myself and my burnt went, you know, away. Actually, tell that story because तुम्हारे हाथों पे माशाल्लाह मुझे एक my is clear. Like nothing. nothing. Tell the story ताकि लोगों को context पता चले कि how bad it was. Okay. यार मैं वैसे मेरा कोई घर वाला ना देख ले, but अच्छा हुआ ये था कि I've always heard of pressure cooker accidents, ठीक है, but never thought in a million years कि I would be in one, ठीक है. तो वो ये था कि मैंने pressure cooker टाइट बंद नहीं किया था, मैंने सिर्फ lid रखा था ऊपर, ठीक है, और आधा घंटा हो गया था, lid बस रखा हुआ था. अच्छा मैं भी भूल गई हुई थी कि you know पता नहीं something came over me, I had to get something, you know, be somewhere. तो मैंने बस थोड़ा सा जिगल किया, वो खुला नहीं. मैंने कहा मैं तो बस रखा हुआ है, खुला नहीं है, क्या हुआ है. मैंने पे ऐसे करके खोला और ऐसे यू नो वॉल्केनो की तरह फट के बाहर आया, एंड आई लाइक जंप बैक एंड स्क्रीम्ड एंड यू नो एंड नो वन रिस्पोंडेड. बट तो वो यही था कि मेरा हाथ पे गरम यू नो मैंने हरी बनाई थी तो गरम लिक्विड ऑन माय हैंड एंड मेरे स्टमक पे आया, मेरे थाइज पे. तो बस यही था कि मैं जल्दी से आइस पैक रखा अपने बीच में हाथ पे, और देन आई स्टार्टेड यू नो मैंने अपनी रेकी पावर ऑन किया यू नो फॉर सेल्फ हीलिंग, एंड यू नो दैट्स द बेस्ट टाइम टू डू इट कि जैसे ही आपको हो फौरन आप उसको कहें ताकि वो बढ़ ही ना सके, वहाँ एनर्जी आ ही नहीं सके बाहर यू नो, तो वो उसको रिलीज करके. खैर तो आई जस्ट डिड लाइक whenever I would sit down I would just do it with my you know on myself, and एक दो दिन में सब क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओप्सी बेटा आराम से. I was saying here comes Mahi's purpose. Just want to add कोई बात perfect है कि मैंने ये क्यों सारी चीजें कर रही हूँ, it's because of Kaden, right? And that is also Allah's way of sending something your path, ताकि आप वो चीज अपना पर्पस वो वहां तक पहुंच सको, right? Because कितनी दफा होता है कि we need a push, हम कभी भी we are so lazy, you know, हम कभी भी खुद जंप नहीं करेंगे उस चीज के ऊपर. हमें जब तक पुश नहीं दिया जाएगा हम बैठे रहेंगे, चिल कर रहे होंगे, so okay we are enjoying our life, हमने आंखें बंद करनी है, हमने कुछ नहीं करना, you know, this is it, this is what it is. So अल्लाह ताला आपको कभी कभार वो एक जंप के लिए कि पुश के लिए आपको कोई चीज भेजता है कि okay this is it, now you have no choice बच्चे, now you gotta do it, right? So जब और वो किसके थ्रू होता है, या तो पेट के थ्रू होता है, या यो हंगर के थ्रू होता है, आप स्ट्रगल करते हो, या आपकी बच्चे के थ्रू होता है, या आपके लव्ड वंस के थ्रू होता है, या पैसों के थ्रू होता है, जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो किसी चीज के लिए. सो दीज आर योर स्ट्रगल्स एंड योर गिफ्ट्स टू रीच टू दैट पोटेंशियल अपने जहाँ पे आपने पहुंचना है. So that's beautiful. Yeah, that's how your journey started, and you know you want to be like okay Allah Taala. हालांकि मैं जब इसको देखती हूँ he's like mashallah, he's good, you know. But of course she knows. और मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं कहा Mahi, you don't have to worry, you know, जब तुम्हारा purpose तुम्हारी चीज का हो जाएगा, it's going to be totally fine, you know, and he will.
मुझे उसकी भी स्टोरी याद आ आंखें खुलने में भी टाइम लगता है, मुझे टाइम लगा बहुत, you know, it took me how many years, 20 something years to figure out what, you know, eventually my purpose would be. So, yeah. takes time. हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं बस अभी पता चल जाए पर्पस हमारा, कि अभी हमें गिफ्ट्स पता चल जाए, हमें अभी ही पता चल जाए ट्रुथ सारा कुछ. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लॉन्ग, हमें वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है. हम तीनों में से भी, मैं अभी भी कहती हूँ कि हम तीनों में से किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, यू नो. हम तो बल्ला Yeah. मैं लिटरली आई डोंट नो एनीथिंग. नहीं, और बल्कि जब कुछ पता चलता है, जो मैं अपनी टीचर को बता रही थी कि whenever I think I know something, फाइनली जब कंफर्ट जोन आ जाती है, फिर एकदम से कोई ऐसी चीज होती है कि लाइक ओ माय गॉड आई न्यू नथिंग. और ऐसे सो लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज जो है, समथिंग दैट यू कैन बी श्योर ऑफ, दैट यू डू नो. ठीक है, और अब हम, अगर आपको नहीं पता था जो देख रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं. The only thing you can be sure of is that your only way to connection with your higher self or your God is through love. And you must build that straight connection. There are a lot of ways to go about it, I think easy ways, लेकिन ये आए बाएं भटकने की जरूरत नहीं है. It's really true. We don't need to look at this course and that course and that thing. You can do something as simple as literally just spend only 1 hour with yourself in a day and just see कि वो खामोशी आपको कहाँ तक लेके जाती है, और आपको क्या नजर आता है, क्या महसूस होता है, क्या सुनाई में आता है. It will change life completely. I agree with you, क्योंकि हम क्या था शुरू में हम क्योंकि हमने डिस्कवर नहीं कर रहे होते, हम अपने आप को नया बच्चा है जैसे, राइट. वो टू बिकम समथिंग, हम हमेशा थ्रू लाइफ में हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं. पैसे कमाने हैं तो हम हाथ पांव ही मार रहे हैं, कैसे कमाने हैं, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, राइट. बट देन देयर सम पीपल यू विल सी कि यार उनको कहीं भी नहीं जाते हैं, उनके पास पैसे आ जाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठाए पैसे आ रहे हैं, राइट. ये कैसे हो रहा है, right? Like literally there's so many people, it's like yaar, how is this going on with you, how this to jo बैठी हुई है and then you know you were just having money, you know. तो ये कैसे हो सकता है. Like, I don't know, it's just I think भाग नहीं रही मैं, you know, भाग नहीं रहे हम. जिस चीज के पीछे भागेंगे, you stand still, एक जगह अपने काम, एक जगह बैठ जाओ, everything will come to you. जैसे एक समंदर होता है, एक ओशन है, राइट. ओशन के पास सारी चीजें आ रही होती हैं, राइट. आ रही हैं, वो ले रहा है, उसके अंदर मछलियां भी हैं, सारा कुछ है, वो एवरीथिंग. अनलेस के एक सुनामी की तरह आ जाता है. सुनामी जब आता है हमारे अंदर ना, तो हम चीज अंदर नहीं ले रहे होते, हम बाहर फेंक रहे हैं, हर चीज बाहर फेंक रहे हैं. आई थिंक हमारा पर्पस ये होना चाहिए जो कि हम stand still, have the love inside you, and बस उस love के साथ बैठे रहो, and the things will keep coming, flowing towards you, you know. Like ये यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है. And I would say I would completely agree with you. मतलब अक्सर ये भी होता है by the way कि आपके जो टैलेंट्स होते हैं वो आपके सामने होते हैं, और आपके लिए इतना आसान होता है वो कि आप सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है. फर्ज करो मेरी सिंगिंग या बिट्टू की, यू नो, पेंटिंग या माही का एनर्जी वर्क, तो बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, तो आपको पता नहीं चलता. उन पे भी मतलब देना चाहिए कि लाइक अटेंशन एंड फोकस के व्हाट आर माय थिंग्स दैट आई डू वेरी इजीली, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं. और दूसरी बात ये कि बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू डू विश फॉर, क्योंकि हर चीज़ की कॉन्सिक्वेंस एक होती है, हर चीज़ का एक रिजल्ट्स होते हैं. कि अगर आप कह भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना क्विक एग्जांपल देती हूँ, then we should wrap this up. When I used to ask for a partner in life, right, mashallah, alhamdulillah, Allah gave me the most incredible partner, and because he was right for me, because he came from एक साफ नियत जिससे मैंने मांगी थी ये चीज़, और जिससे मैंने भी अपने आप को तब्दील किया.
before finding him, I made sure कि मैंने भी अपने आप को accordingly ऐसे जिस शख्स को मैं मांग रही हूँ उस शख्स के हिसाब से मैंने अपने आप को भी तब्दील किया. तो एक तो मुझे इतने आराम से मिल गया ऐसा शख्स उस चेंज के बाद, राइट. दूसरी बात ये कि it was so easy, the process was like timeline process, ये वो, you know, मेरे लिए आसानी पे सिर्फ और आसानी ही थी इस पूरी सिचुएशन में. So then I knew it was the right person and the right thing. However, the thing that I asked for, I got. लेकिन उसकी दूसरी भी consequences थी. मुझे अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के वर्जीनिया में इतनी long established, मेरा दिल जो वहाँ पे अटका रहता है अभी भी, I had to move to New York. I hate New York. पहले से मुझे, you know, तो एक ये consequence ही आपने अपनी जिंदगी उखाड़ के you have to move here, and maybe it's not a bad thing. It's like it's gonna open the pathway for some other things. And this is a smaller example maybe. लेकिन आप जो चीजें मांगते हैं, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मुझे $1 billion चाहिए, उस $1 billion के साथ, उस सेलिब्रिटी वर्ल्ड के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेस भी आती हैं. जिस चीज को आप हाँ कह रहे हैं आप किसी और चीज को ना भी कह रहे हैं. So mind what you're asking for, which is why Mahi said in the last episode, forget about asking. Just ask for doing what's best for you to do. Like what's in your best interest and what's in others' best interest at the end. और मैं एक और चीज कहना चाह रही थी, बिट्टू, you brought up the point of, you know, money and money coming to you and you stand there, blah, blah. But I think talking about money and money blocks and money mindset would be a completely different episode to get in more details, because I'm sure many people do want to know and understand. Yes. कि उनके पास पैसे क्यों नहीं आ रहे या क्या रुकावटें हैं, what's going on. So I think Maybe awesome episode for that. Let's focus on the next episode on how to find your gift, and then Mahi, we should definitely talk about these topics. I know a lot of people will be very interested. How to make money? Yeah, how to make money? Why don't I have more money? मेरे money blocks क्यों हैं life में? Career blocks. मैं क्यों इस job में अटका हुआ हूँ? I'm doing what I love, but I'm not making money. Classic. Yes. Classic. Yeah, most definitely. All right, guys, thank you so much. We shall see you on the next episode. Love you. Take care of yourself. Enjoy Karo Apna. Thank you so much, guys, for watching us. Take care. Yes. Okay.